प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। अब आप जानते हैं कि जब हम प्रेशर लगाते हैं किसी फ्लूइड के ऊपर, या हम ऐसे कहें कि फ्लूइड जिस पाइप में से फ्लो कर रहा है, अगर उसके दो एंड्स पर प्रेशर डिफरेंस है तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड की हाइट इंक्रीज करती है और वेलोसिटी इंक्रीज करती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। और सम ऑफ द थ्री एनर्जीज, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ इस तरह से स्टेट करते हैं बर्नौलीज थ्योरम को। फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस and incompressible fluid, sum of pressure P, kinetic energy per unit volume half rho v square and potential energy per unit volume rho gh remains constant। मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। कंसिडर a non-viscous and incompressible fluid flowing through a pipe of varying area of cross section. Let us assume that the flow is steady or streamline and the pipe lies at varying heights. Let P1, A1, V1, H1 and P2, A2, V2, H2 are the pressure, area of cross section, velocity and height at and B and E respectively. That is, यहाँ पर प्रेशर जो है वो एंड B पर कितना है, P1, और एंड E पर P2। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इधर फेस का, पाइप के फेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, फिर A1 के ऊपर प्रेशर P1, A2 के ऊपर प्रेशर P2। यहाँ वेलोसिटी फ्लूइड की V1, इधर वेलोसिटी फ्लूइड की V2, इधर हाइट जो है वो पाइप की या फ्लूइड की H1 और इधर हाइट H2। Consider the flow at two regions BC and DE. Let us consider that initially the fluid flow is lying between B and D. Let the fluid flows from BD to CE in infinitesimal time delta t. Well, because this time delta t is very small, so during this between B and C, the area of cross section A1 can be considered to be constant, and between B and E also the area of cross section can be considered to be constant, that is A2, here A1. Because the fluid is incompressible, the volume of fluid between B and C must be equal to volume of fluid between D and E. चलिए फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बिटवीन B and C. Volume is equal to area of cross section into distance BC. Area of cross section here is A1, distance is BC. And in this, on this side, area of cross section A2, distance travelled by the fluid is DE. A1 into BC will be equal to velocity into time. Velocity is
V1 टाइम डेल्टा t इक्वल टू A2, इधर वेलोसिटी V2 into टाइम डेल्टा t. This is the volume of the fluid flowing in time delta t. This is equal to, let us say, delta V. Let us find out the mass of the fluid flowing in time delta t. This mass will be equal to volume into density. Rho is the density of the fluid. Let us now find out the work done by pressure P1 in deriving volume delta V from B to C. Work done on the fluid by pressure P1 in deriving अब ये W1 किसके बराबर होगा? वर्क बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का. अब क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है वो पुश कर रहा है फ्लूइड को उसी डायरेक्शन में, मीन्स द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हियर इज 0. मीन्स work is equal to Fs into cos 0, cos 0 1, and this is equal to product of force and displacement. फोर्स यहाँ किसके बराबर है? प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डिस्टेंस कितना है? BC. तो ये हमारे पास आ गया P1 इंटू A1 इंटू BC किसके बराबर होगा? Velocity into time. Velocity is V1 and time is delta t. तो ये किसके बराबर आ गया? P1 A1 V1 and into delta t. This is equal to delta V. Let us now calculate work done by the fluid against pressure P2. अब ये प्रेशर P2 लग रहा है इस तरफ से, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. सो फ्लूइड वर्क्स अगेंस्ट P2. अब ये वर्क W2 इक्वल टू प्रेशर P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 वेलोसिटी V2 इंटू टाइम डेल्टा t. ये किसके बराबर आ जाएगा? P2 इंटू ये बराबर है डेल्टा V. Let us now calculate net work done on the fluid. This is equal to W1 minus W2. So W1 किसके बराबर है? This is equal to P1 into delta V minus P2 into delta V. P1 minus P2 here minus P2 into delta V. Well, this work done is equal to increase in potential energy and increase in kinetic energy of the fluid. This is in accordance with law of conservation of energy or work energy theorem. चलिए कैलकुलेट करते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ
m की जगह हमारे पास डेल्टा m इंटू v2 स्क्वेयर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mass of the fluid flowing in time delta t into velocity square v1 square। तो ये आ जाएगा 1/2। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी m into g into h2 m delta m into g into h2 minus initial potential energy of the fluid of mass delta m into g into h1 which is equal to delta m into g भी बाहर ले लेते हैं into h2 minus h1। तो w किसके बराबर आ जाएगा? W is equal to increase in kinetic energy is 1/2 delta m v2 square minus v1 square plus increase in potential energy is delta m into g h2 minus h1। और W किसके बराबर आया था? P1 minus P2 into delta V equal to, इसी स्टेप में भी लिख सकते थे हम अब यहाँ डेल्टा M को हम लिख लेते हैं in terms of volume and density। आप एक स्टेप डिक्रीज कर सकते हैं। वॉल्यूम इज डेल्टा V into density rho plus mass is equal to volume into density rho into G H2 minus H1। अब डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को बाय डेल्टा V। जब हम डेल्टा V से यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं हम एनर्जीज फाइंड आउट कर रहे हैं, एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको साथ में ब्रैकेट को हटा लेते हैं v2 स्क्वेयर माइनस हाफ रो v1 स्क्वेयर प्लस रो जी h2 माइनस रो जी h1। P1 प्लस यहाँ से हाफ रो v1 स्क्वेयर प्लस इधर से रो जी h1 इक्वल टू P2 पॉजिटिव साइन के साथ इस तरफ P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वेयर प्लस रो जी h2। सो ये बर्नौलीज थ्योरम है, या इसको ऐसे लिख लें दैट इज P प्लस हाफ रो V स्क्वेयर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो द सम ऑफ दीज इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर प्रेशर एनर्जी को प्रूव कर सकते हैं प्रेशर के बराबर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को भी प्रूव कर सकते हैं प्रेशर के बराबर। तो उस केस में हम लिख लेंगे फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द सम ऑफ pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remains constant। ये स्टेटमेंट है NCERT बुक के हिसाब से।
चलिए आगे देखें एक और स्टेटमेंट। हम रो से डिवाइड कर लेते हैं थ्रू आउट, P ओवर रो प्लस यहाँ आ जाएगा 1/2 V स्क्वेयर, यहाँ पे रो से डिवाइड हुआ GH इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रो, दिस इज अनदर कांस्टेंट। तो ये बन गया P ओवर रो इज पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, और हाफ V स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, और GH क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। एक और चीज हम यहाँ से लिख सकते हैं, लाइक हम क्या करें कि इसको G से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको G से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा P ओवर G इंटू रो प्लस हाफ V स्क्वेयर ओवर G प्लस GH ओवर G कितना आ गया H इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब यहाँ पर तीन क्वांटिटीज हैं, इन तीनों क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस हैं वो सेम है, डायमेंशंस ऑफ लेंथ। अगर आप इनकी कैलकुलेट करें तो इसकी तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ ही है, h है, तो इनकी भी डायमेंशंस जो है वो दोनों की लेंथ की डायमेंशंस हैं। इसको कहते हैं P ओवर G इंटू रो इज कॉल्ड प्रेशर हेड। हेड क्योंकि डायमेंशंस जो हैं वो लेंथ की हैं। हाफ V स्क्वेयर ओवर G को कहते हैं वेलोसिटी हेड, और H को कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड या पोटेंशियल हेड। H को कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। तो इसके हिसाब से हम कैसे स्टेट कर सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम को? फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए एक चीज और, if the fluid is flowing in a horizontal pipe, in that case H is constant। अब यहाँ से H कांस्टेंट से हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो इंटू V स्क्वेयर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सम टोटल कांस्टेंट। अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं। ये कॉर्क है, मैं इसको पाइप को हॉरिजॉन्टल रखा है, बॉटल को ब्लो करूंगी, ये अंदर नहीं जा रहा है ब्लो करने से। ये पाइप बहुत, ये कॉर्क जो है वो बहुत लाइट है, वैसे ही अंदर चला जाता है, लेकिन ब्लो करने से अंदर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पर ब्लो किया तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई एयर की। वेलोसिटी बढ़ने से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होने से जो अंदर का प्रेशर है बॉटल के, वो इस कॉर्क को बाहर की तरफ पुश करता है। तो इस तरीके से ये बर्नौलीज थ्योरम, इसकी एप्लीकेशंस आप पढ़िएगा। एप्लीकेशंस में मोस्टली ये इक्वेशन यूज होते हैं
कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो बच्चों इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। थैंक यू।